اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑھتی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی کم ہو گئی۔ ڈیزل پر سبسڈی 86 روپے سے کم ہو کر 56 روپے رہ گئی ہے۔ پیٹرول پر سبسڈی 47 روپے سے کم ہو کر 17 روپے رہ گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل پر سبسڈی 67 روپے سے کم ہو کر 37 روپے رہ گئی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل پر سبسڈی 51 روپے سے کم ہو کر 21 روپے رہ گئی ہے۔ پیٹرول مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور لیوی کی شرح صفر برقرار ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس پر بات کریں گے رانا طارق سے۔ رانا طارق بتائے گا کس حد تک سبسڈیز کو کم کیا گیا ہے؟ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور 3 لیٹر سبسڈی جو ہے وہ کم کی گئی ہے۔ پیٹرولیم پر سبسڈی کا جو ہے وہ 56 روپے 51 پیسے تک رہ گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 3 لیٹر 86 روپے 71 پیسے تک لیٹر جو ہے وہ سبسڈی دی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے۔ آج کی ڈیٹ پر سبسڈی جو ہے وہ 86 روپے 71 پیسے سے کم ہو کر 56 روپے 71 پیسے فی لیٹر رہ گئی ہے، جبکہ پیٹرول پر سبسڈی جو ہے وہ 47 روپے 2 پیسے سے کم ہو کر 17 روپے 2 پیسے فی لیٹر رہ گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل پر سبسڈی جو ہے وہ 70 روپے 84 پیسے سے کم ہو کر 37 روپے 84 پیسے تک آ گئی ہے۔ مٹی کے تیل پر سبسڈی جو ہے وہ 51 روپے 83 پیسے سے کم ہو کر 21 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ IMF نے پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور سیل ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 0 برقرار ہے۔ جی رانا طارق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اتحادی حکومت نے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے مشکل فیصلہ کر لیا۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں 30 روپے لیٹر بڑھا دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ 30 روپے کا اضافہ۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 149 روپے 86 سے بڑھ کر 179 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 144 روپے 15 پیسے سے بڑھ کر 174 روپے 15 پیسے ہو گئی، جبکہ مٹی کا تیل 155 روپے 56 پیسے کا ہو گیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے سبسڈی بڑھنے کے ساتھ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ نااہل اور بے حس حکومت نے روس کے ساتھ 30% سستا تیل خریدنے کے ہمارے معاہدے کو آگے نہیں بڑھایا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام حکومت سے سخت نالاں نظر آئی۔ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ غریب عوام کے اوپر پیٹرول کی سبسڈی کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ PTI نے 15 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، خود تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ ایکسپیرینس لوگ آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ پیٹرول سستا کریں اور سبسڈیز جو دے رہی تھی گورنمنٹ اس کو قائم رکھیں۔ دوحہ میں پاکستان اور IMF کے حکام کے درمیان 4 روزہ جائزہ مذاکرات گزشتہ روز ختم ہوئے، جس میں پیٹرول اور بجلی پر دی گئی سبسڈی ختم کرنے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپے لیٹر مہنگا ہونے پر عوام کی اکثریت حکومت کے خلاف پھٹ پڑی۔ تاہم بعض کا کہنا ہے کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ فی لیٹر 30 روپے بڑھے ہوں، لیکن اس نے بڑھا دیا ہے۔ کرایہ تو بڑھائیں گے تو وہاں سواری نہیں بیٹھے گی، ہم کدھر جائیں گے؟ مزدور آدمی ہے، دیہڑی پر گاڑی چلاتے ہیں۔ تیل بڑھا دیا ہے، اب کیا کریں؟ جو ہے نا، جہاں رحیم یار خان کا کرایہ 11,000 تھا، سواری 9,000 سناتی ہے۔ ہماری کمائی نہیں ہو رہی، ہم بہت پریشان ہیں سر، سواری کرایہ نہیں دیتی ہمارے کو، اور پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں، کوئی پیٹرول پمپ نہیں کھلا ہوا، پیدل گاڑی گھسیٹ گئی، یہ ایک کھلا ہوا ہے، یہاں سے پیٹرول ڈلوا رہا ہوں۔ چولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہے ہیں، خدا کے واسطے اس کو بند کرو، اس کو کم کرو۔ غریب عوام پہلے جناب مہنگائی سے پس رہی ہے، مزید انہوں نے 30 روپے کا اضافہ کر کے مہنگائی کا جناب بار عوام پہ کر دی ہے۔ غریب انسان تو ایک ٹائم کی روٹی کھانے سے بھی پریشان تھا، تو اب غریب انسان جائے تو جائے کہاں؟ حکومت صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے، عوام کا کوئی فائدہ نہیں سوچتی، غربت ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات کن اشیاء پر پڑیں گے؟ شہری کس حد تک متاثر ہوں گے؟ یہ جانتے ہمارے نمائندے شیراز احمد سے۔ جی شیراز، بتائیے گا کہ شہریوں کا کیا کہنا ہے اس متعلق؟ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ اس پر شہریوں کی کیا رائے ہے اور شہریوں کو اس حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔
हमारी रोजी खराब हो रही है। कल जो 150 रुपये का पेट्रोल भरा रहे थे, आज 180 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं हम। 180 रुपये का भरा रहे हैं, लेकिन हमें तो मुआवजा वही मिलेगा जो मिल रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ के तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें पैसे ज़्यादा ही देने। गरीब आदमी मरते हैं रोडों में, बड़ा बुरा हाल बना उसका, समझो। कोई किसी को मकान कराएगा, बड़ा बुरा हालात है, मतलब मुल्क का इस टाइम था, अफरी तफरी मची है, समझो। सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। परेशानी तो है ना, ये गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। ये आए दिन किसी न किसी चीज़ पे बढ़ाए बैठे हैं, बढ़ाए बैठे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। बसूरत दीगर मुल्क में महंगाई का नया तूफान बर्पा हो जाएगा, जिससे उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल तर हो जाएगी। शराज ने अवामी राय के हवाले से बताया तो दूसरी तरफ अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि बैरूनी आकाओं की ईमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 30 रुपये फी लीटर तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने लिखा, आवाम अब जबरदस्त महंगाई का एक और झटका बर्दाश्त करेंगे। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर आवाम को रियायत दी है। भारत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये फी लीटर कमी की है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की है। वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक तर्जुमान मुज़म्मिल असलम का कहना है कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत हम पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्ज़ाम न लगाए। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। जब हम गए थे उस दिन डीजल की सब्सिडी थी 25 रुपए और पेट्रोल की थी 15 रुपए। अब वो बढ़ के 90 रुपए हो गई डीजल की सब्सिडी और पेट्रोल की सब्सिडी वो बढ़ के 47 रुपए हो गई है। तो वो करते ही रहे कि जी वो डालते रहे बाहर हर दफा हर दिन कि जी इन्होंने जो है एक बारूदी सुरंग लैंड माइन जिसको कहते हैं ये बिछा के चले गए। ये साल जो हम जिसमें है ये मैं आपको बता दूं मुश्किल तरीन साल होगा रशिया रूस की वॉर के बाद। जो आलमी मार्केट में खाने पीने की चीजें बहुत तेजी से बढ़ी है, अभी तक तो कोई ढंग का फैसला नहीं किया। नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस की समाअत हुई है। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस की समाअत हुई है। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि इससे पहले FIA ने भी एक लिस्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की थी। और इसी हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस की समाअत हुई है और अब अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात भी तलब कर ली है। ये केस है जिसकी समाअत हुई है और अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इससे कबल FIA की जानिब से भी नामों की फहरिस्त जमा कराई गई थी अदालत में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ कि गुजरांवाला के ट्रांसपोर्टर्स ने भी फौरी किरायों में इजाफा कर दिया है। किरायों में 20% इजाफे से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं रफीक मुगल। जी रफीक। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया है। 30 रुपये डीजल और 30 रुपये ही पेट्रोल पर जो है फी लीटर पर बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टर हज़रात जो हैं वो भी किराए बढ़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। जहां पर किराया पिंडी का गुजरांवाला से 600 से 650 रुपया था, अब वो से 750 रुपया कर दिया गया है। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अच्छा ये बताएं आज किराया कितना बढ़ चुका है, पहले कितना किराया देते थे? पहले हम 450 रुपया देते थे, अब ये मांग रहे 650-700 रुपया एक बंदे का फैजाबाद का। हम सब मुसाफिर भाई हैं, ये किराया बिल्कुल जायज़ होना चाहिए हमारे। आज बिल्कुल मुसाफिर की बात सुनी आपने कि जहां पर वो 450 रुपये में बासानी सफ़र कर लेते थे, आज उन्हें जो है वो 650 और 700 रुपये उनसे जो है वो डिमांड की जा रही है। तो किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इसकी वजह जो है वो यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो रात के 30 रुपये फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया। तो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टर हज़रात ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। जी रफीक मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल के नर्ख बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में भी इजाफा कर दिया है, जबकि अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने के खदशे के पेश नज़र शहरी परेशान है। इसी बारे में मजीद जानते हमारे नुमाइंदे असजद मुनीर से। असजद, बताइएगा कि इस पर शहरियों का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है?
जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 30 रुपये इजाफा के बाद महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम जो है वो उनका शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की अशिया मार्केट में पहले ही महंगी थी, जिनकी कीमतें जो हैं आज से ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। जो ट्रांसपोर्टर्स और दीगर यहाँ पर गाड़ियों में सवार लोग थे, उनका ये कहना था कि आप वो गाड़ियाँ जो है फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। महंगाई जो है इससे मज़ीद बढ़ेगी और घरों के जो चूल्हे जलाने हैं वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर पेट्रोल पंप मालकान की, तो मालकान ये कहना है कि महंगाई के बाद इनकी जो सेल है उनमें भी कमी वाक़या हो रही है। शहरी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर वो मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये हुकूमत भी इक़दाम करे। जी बहुत शुक्रिया अर्शद, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस जंग से आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा जारी है, जिससे दुनिया भर की हुकूमतें परेशान दिखाई देती हैं। एक हफ्ते के दौरान खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रूस यूक्रेन जंग पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होने लगी। रूस ने रूबेल में अदायगी न करने पर यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई रोक दी, जिसके बायस खाम तेल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 7% तक इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया की हुकूमतें परेशान हैं कि अपनी आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल एक हफ्ते में 5% महंगा होने के बाद $114.24 फी बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे 7% इजाफे से $117.64 में तय हुए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका ने अपने ज़खायर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जंग ना रोकी गई और ओपेक ने पैदावार में इजाफा ना किया तो शदीद मुआशी बहरान तरक्की याफ्ता ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगा। और नाज़रीन आपको बताएं कि हुकूमत IMF मुज़ाकरात बिजली भी महंगी होगी। हुकूमत का बिजली के फी यूनिट में 7 रुपये इजाफे के लिए IMF से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा क्या हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा 1 जुलाई से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में 7 रुपये फी यूनिट इजाफे पर बातचीत जो है वो जारी है। जराये का कहना है कि बिजली टैरिफ में इजाफा बेस टैरिफ और समाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। IMF ने 2600 अरब रुपए की बिजली की गलती सर्वे पर शदीद जो है तशवीश का इजहार किया है। IMF ने बिजली को मुनाफा बख्श तस्लीम कार कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज़ भी दे दी है। बिजली की नुकसान करने वाली तस्लीम कार कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ भी सबसे गौर है। बिजली की सरकारी कंपनियों से आदिश के लिए नेपरा ऑडिटर जनरल को मावनत काम करेगा, ये कहना है जवाब का। सरकारी शोबों में बिजली कारखानों की फौरी निस्तारी का भी दबाव है। जी राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में MQM, BNP मेंगल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इसके अलावा कौन कौन सी उम्र पर बहस की जाएगी आज? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जो जमातें हैं उनसे मुलाकातें जारी हैं। आज वज़ीर आज़म 5 इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ये ज़ोहराना वज़ीर आज़म हाउस में आज दिन 2 बजे होगा, जिसमें MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मेंगल, ANP और काफ लीग के अरकान को मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर इत्तेहादियों से मुशावरत भी करेंगे। बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उसके ऊपर एतमाद में लिया जाएगा। बजट की सूरत हाल समेत जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है और IMF के साथ जो डील चल रही है इस बारे में भी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी। सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत की जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले JUI और नून लीग के अरकान पार्लियामेंट को भी ज़ोहराना दे चुके हैं। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। सियासी मैदान में नजर डालते हैं, जहां पर चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज भी देखने में आया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया गया है। सेनेट में बिल की मंजूरी पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है। आपको बताते चलें कि कल के
इजलास में भी दो अहम बिल्स जो हैं उनमें तरमीम कराई गई है और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है, जहाँ पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया गया है। सेनेट में बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज भी सामने आया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अब्बासी से। जी कासिम अब्बासी, इस बिल की तफसीलात बताइएगा और क्या एहतजाज किया गया, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सेनेट इजलास में जो है वो इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट से जो है वो मंजूरी के लिए दिया गया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए जो आज का इस बिल का एजेंडा था उसकी कापियां भी फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने जो है वो सेनेट हॉल के अंदर शदीद एहतजाज किया, जबकि अरकान चेयरमैन सेनेट की डाइस पर इर्द गिर्द जमा हो गए और उनके हुकूमत के इस बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 जो है वो आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसको सेनेट से मंजूर किया गया। जी ठीक है, सेनेट ने मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से बात करेंगे महंगाई की। नाज़रीन, पेट्रोल के बाद 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये का हो गया है। वजारत सनअत व पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा नवाज संगरा से। नवाज, बताइएगा कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आटे की कीमतों के इजाफे का बाइस हुए हैं? पीटीआई की साबिक हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने के लिए की गई तरमीम को मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। इस हवाले से कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर किया गया। पीटीआई लंदन के सदर बैरिस्टर वहीदुर रहमान, पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी और प्रोफेशनल फोरम के अहदेदार ने हुकूमत के इस इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान असम्बली में जिस तरह से एक नया बिल पेश करके ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो उनको वोटिंग का राइट दिया गया था उसको छीना गया है, उस बिल को मनसूख किया गया है, इसकी ओवरसीज पाकिस्तानी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदलिया पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसका नोटिस ले। खुसूसी अदलिया से हम अपील करते हैं कि वो फौरन तौर पर 100 नोटिस ले और इस बिल को स्टॉप करे। किसी भी गवर्नमेंट को सियासी तौर पर सियासी मफादात की खातिर ये हक नहीं पहुँचता कि वो ओवरसीज को, जो कि उसी तरह से पाकिस्तानी है जिस तरह दूसरे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे उनका बुनियादी हक जो वोटिंग का हक है वो छीन कर वो इसको खत्म करते हैं। ओवरसीज के जो मसाइल हैं वो ओवरसीज के लोग ही बेहतर जानते हैं और समझते हैं, इसलिए यहीं से कोई नुमाइंदा होना चाहिए। और ये हमारी डिमांड भी ये भी रही है कि ओवरसीज का एक कोटा जो है वो चारों सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली में, सेनेट में भी होना चाहिए। इस हवाले से अगर आप देखें तो मोर देन 31 अरब डॉलर जो हैं वो हम पाकिस्तान भेजते हैं और उनकी नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कोटा रखा जा सकता है ओवरसीज के लिए, जो ओवरसीज के मसाइल को हल भी हो सकता है। ओवरसीज वोटिंग राइट्स के हवाले से इन्होंने बिल पेश किया हुआ था, उसको इन्होंने अंडू कर दिया है। अब इसका नुकसान ये होने जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला बिल था EVM और जो ओवरसीज वोटिंग राइट्स वाला बिल था, जहाँ जिसका मतलब था कि हम यहाँ बैठ के अपने वोट के राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। प्रैक्टिकली इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब सदर साहब जो है उन्होंने इसको साइन करना है, जो वो 10 दिन तक डिले कर सकते हैं, इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये जॉइंट सेशन में जाएगा और जॉइंट सेशन में पास होगा, विच मीन्स कौमी असम्बली और सेनेट। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब के पास 10 डेज होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये इवेंचुअली पास हुआ भी तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी 2 जजमेंट मौजूद हैं जिसके मुताबिक ओवरसीज वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन वो यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल लोहसर ने कहा है कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करके दायरे गैर में बसने वाले 90 लाख पाकिस्तानियों को मायूस किया है। वोट के हक को ख़त्म करने का फैसला ना लिया गया तो हम सीसा पिलाई दीवार बनकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर फैसला वापस ले। अपने वीडियो पैगाम में परवेज इकबाल लोसर का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज 90 लाख पाकिस्तानियों का दिल तोड़ा गया है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने
جو اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ووٹ کا حق دیا گیا تھا وہ آج ان سے حق واپس لے لیا گیا ہے۔ میں پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے عوام ابالا کو، تمام لوگوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، ہمارے یورو، پاؤنڈ، ڈالر، درہم، ہمارا پیسہ فلڈ ہو یا زلزلہ ہو یا پاکستان کی مدد ہو وہ تو قبول ہیں، لیکن ہمارا ووٹ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر ووٹ کا حق جاتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ ستیلے بچے والا سلوک ہوا ہے۔ ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ایک غیور قوم ہیں، غیور پاکستانی ہیں، 90 لاکھ کے 90 لاکھ ایک پیٹ پہ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، ریاست پاکستان اور ہمارے ووٹ کا جو حق چھینا گیا ہے یہ حق ہمیں واپس ملے۔ یہ خوف نہ ہو کس پارٹی سے، کس جگہ سے، کس علاقے سے، کس مذہب سے، کس قوم سے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اگر ووٹ کا حق واپس نہ دیا گیا اور مخصوص نشستوں کا بھی اعلان بھی نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے خوردم نشستم اینڈ رفتم، ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دوار بن جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، رہتے تو ہم دنیا کے جس ملک میں ہیں، پردیش میں، دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم اس وقت تک جب تک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یا ان کو اسپیشل سیٹیں نہیں ملتی ہم سراپا پروٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کا رد عمل جاری ہے۔ یونان میں فرینڈز آف کشمیر اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بھارتی حکومت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے عالمی دہشت گرد مودی اب حریت رہنماؤں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان یاسین ملک کی سزا کے خلاف عالمی عدالت میں فوری طور پر کیس دائر کرے۔ انڈین عدالت نے جو ظلم و جبر، بربریت اور ناانصافی کا فیصلہ یاسین ملک کے خلاف دیا ہے، جو ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، اس طرح یہ انڈیا کے ہوچے ہتھ کنڈے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے کبھی پیچھے نہیں کر سکتے اور نہ وہ کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور انڈیا کو ہم باور کروانا چاہتے ہیں یہ جو عدالتیں جو انہوں نے ہندوانہ سسٹم کے تحت مسلمانوں کو پیچھے کر رہے ہیں، کشمیر میں اپنا ظلم و جبر کر رہے ہیں، انڈیا تمہیں کشمیر کو چھوڑنا ہوگا۔ لہذا پورے کشمیر کو جو جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، عالمی اداروں سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کر کے یاسین ملک صاحب کی سزا کو ختم کروانے کی پاکستان گورنمنٹ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ان کے اہل خانہ کو یاسین ملک صاحب سے جلد از جلد ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کشمیر کی تحریک آزادی اس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، پوری امت مسلمہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ یاسین ملک صاحب جو کہ ممتاز کشمیری رہنما ہیں ان کو قید کیا ہوا ہے اور آج کل انڈین گورنمنٹ ان کے جوڈیشل مرڈر کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ہم پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے اور بالخصوص کشمیری لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی رہائی کی دعا کریں اور انڈین گورنمنٹ کے ان اقدامات کی بھرپور مذمت کریں اور پوری دنیا میں اس جوڈیشل مرڈر کو ہائی لائٹ کریں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ یاسین ملک صاحب کی آواز بنے۔ جو بھی عالمی فورم پر، عالمی دنیا پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حریت رہنما کی رہائی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے کو سیریس لیں اور یاسین ملک صاحب کے خلاف جو بھارت کا غاضبانہ منصوبہ ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور عملی کردار ادا کرے۔ سعودی عرب میں حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارت کی جانب سے عمر قید کے فیصلے کے خلاف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے شرکت کی اور یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تفصیلات دیکھیے عمیر علی کی رپورٹ میں۔
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जम्मू और कश्मीर ओवरसीज फोरम की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए शुरका का कहना था कि यासीन मलिक करोड़ों कश्मीरियों की आवाज़ है जिनको भारत की जानिब से नाम नेहाद और बेबुनियाद मुकदमात में काले कवानीन के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि भारत जहाँ गुज़िश्ता 70 सालों से मजालिम ढा रहा है, वहीं हुर्रियत रहनुमाओं की आवाज़ों को दबा देना चाहता है, मगर भारत यासीन मलिक जैसी तवाना आवाज़ को किसी सूरत दबा नहीं सकेगा। आलमी बरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी तावन तंजीम OIC को चाहिए कि वो भारत की जानिब से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा खत्म करवाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत पर दबाव डाले। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद में अपनी कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाए और यासीन मलिक के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का खात्मा मुमकिन बनाए और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी जद्दोजहद आज़ादी के लिए एहतजाज को यकीनी बनाए ताकि भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सलीम आफ्ताब, इफ्तिखार शाकर, रशीद खान, इफ्तिखार अब्बासी, जाकिर जज्बी, तौफीक आफ्ताब, आसिम और ज़काउल्लाह मोहसिन ने खिताब किया। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। पाकिस्तान में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन पर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में PTI कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर लॉन्ग मार्च के दौरान जाँ बहक होने वाले PTI कारकुनों की याद में शमें रोशन की गईं, दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। फ़ज़ा इमरान खान के हक़ में नारों से गूंजती रही। तफ़सीलात देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। वाशिंगटन DC में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के लॉन्ग मार्च की हमायत में होने वाले मुज़ाहरे का एहतमाम PTI वाशिंगटन के सदर जॉनी बशीर की तरफ से किया गया। मुज़ाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानी और PTI कारकुन अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए। इस मौके पर फिजा इमरान खान के हक में नारेबाजी से गूंजती रही। तेरी शान मेरी शान, इमरान खान, इमरान खान। तेरी शान मेरी शान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती करते हुए लॉन्ग मार्च के शुरका पर पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की। उनका कहना था कि हुकूमत ने PTI के पुरअमन लॉन्ग मार्च को जबरदस्ती रोक कर उसे पुरतशद्दुद बना दिया। आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है उसकी मैं पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ और ख़वातीन पे जो ज़ालिम ढाए गए हैं और हमारे PTI के कारकुनों पे जो जुल्म किया गया है और जो मवाद वाक़या हुई हैं उनमें सब चीज़ों की मजम्मत करता हूँ और खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। Stand with Pakistan and Imran Khan and all the people that are on the long march in Islamabad. हमारी आखिरी उम्मीद इमरान खान और कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान ऐसे लीडर हैं जिनको कोई नए में बदल नहीं है और हम चाहेंगे कि इमरान खान को आज़ादी से सलामती के साथ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनाए। जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, एक दयानतदार हुकूमत थी जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न किया होता और इन चोरों डाकुओं ने जिस तरीके से ख़त्म किया वो कंडेमेबल है और हम उसको कंडेम। I love Imran Khan. He is a good leader. He fights corruption, so he is out. May Allah with Imran Khan. मुज़ाहरे के मुंतज़म जॉनी बशीर का कहना था कि पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ है इस पर सब ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल गमज़दा हैं। हमारा दिल पाकिस्तान से धड़कता है, पाकिस्तान हमारी जान है, हम बेहद गमगीन हैं, उदास हैं, अफसुर्दा हैं कि पाकिस्तान में जो आज हुआ है, जिस तरह पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा किया, हम उसको कंडेम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो हमारे कायद हैं इमरान खान को कामयाब करे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो इलेक्शन अनाउंस हो ताकि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है अपना लीडर खुद चुन सके। शुरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान उनकी आखिरी उम्मीद है, उनका कोई नेमल बदल नहीं। इलेक्शन हुए तो इमरान खान को पूरी कौम दोबारा वजीर आज़म बना देगी। हम लोग इमरान खान के साथ बहुत जोश और जज्बे के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इलेक्शन हो। इलेक्शन होने के बगैर भी आप देखें पूरी कौम उसके साथ वोट के साथ है। कायदे आज़म के बाद हमें इमरान खान मिला है जो हमारी लास्ट होप है पाकिस्तान की, लेकिन जो कुछ अब हम देख रहे हैं और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में एक इमरान खान नहीं, हर शहर, हर गली, हर कोने से एक इमरान खान निकल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने मिलजुल के ये हम पे जो पाकिस्तान का सारा गंद इकट्ठा करके हम पे मुसलत कर दिया है, अब इसको साफ करें। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुजरिमों को रिलैक्स लॉ और रिलैक्स रूल्स के तहत जो दिया गया, जिसकी वजह से आज ये मुल्क ये परेशानी देख रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूं प्लीज़ जितने भी मुजरिमान हैं जो प्रीवियसली जिनको रिलैक्स दिया गया कानून के ज़रिए से, उनको वापस
रिवर्स किया जाए सारे रूल्स और रेगुलेशन को और उन पे केस दाखिल किया जाए दोबारा ताकि वो पकड़े जाएं मुजरिम। आज पाकिस्तान के जो हालात देख रहे हैं, देख बहुत दुख हो रहा है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याही से लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में जो जुल्म बर्बरियत का एक तमाशा पुलिस ने शुरू कर रखा हुआ है और उनकी जो हुकूमत है इस वक्त, जो कि एक सेलेक्ट हुई हुई है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, दूसरों के कहने के ऊपर वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं। मुज़ाहरे के शुरका ने दिल दिल पाकिस्तान और दीगर मिली नगमे गाकर माहौल गरमा दिया। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इसके दिल कुर्बान, इसके जान। शुरका ने लॉन्ग मार्च के दौरान जाम बहक होने वाले पीटीआई कारकुनों के लिए दुआए मगफरत भी की। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बचा, हमारे पाकिस्तान को इन दुश्मनों, इन चोरों से बचा। या अल्लाह, जो कि जो हमारे पर मुसल्लत किए गए हैं, जो चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, अल्लाह ताला अपने करम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके इनसे बचा। मुज़ाहरे के आखिर में शुरका ने जाम बहक अफराद के हक में शमे रोशन करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया, जबकि टेक्सास फायरिंग में हलाक होने वाले अमरीकी बच्चों की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन।